Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Manisha Misra. I am here to talk to you about the timetable I used to follow when I was actually preparing for UGC NET exam 2022. And I have already shared when I actually qualified. I made a video. I said I will be sharing with you all the strategy, my process, and details, sources, and everything. I think I have already covered everything, the detailed sources as well as my process and strategy. Now it's time to share the timetable. I thought, what is there to share the timetable? And I was actually about to skip that video, but then I got so many emails, and also in comment section, some people were asking me through personal messages and Instagram account, share your like timetable while you were preparing. So I'm being very honest, like every other video I'm going to be very honest. I'm not going to be showing off anything. And so my day used to start at 9 a.m., which I'm not very proud about. 9 a.m. I used to wake up at 9 a.m. and then I used to get freshen up and do everything else, then sit to study at 10 or 10:30 a.m. and it used to continue about 1 p.m. 1:30 p.m. तक continue होता था. Then I used to go and take bath, have lunch, take some रेस्ट इन द सेंस सोना वोना तो नहीं होता था मेरा. फिर भी मैं 2:30-3 बजे तक फिर फ्री हो जाती थी, तो फिर मैं वहीं से पढ़ने बैठती थी 5 बजे तक. सो इट वॉज अप टू 5 p.m. एंड देन what I used to do is 5 p.m. to 6 p.m. was my break time. I used to watch some vlogs, to have chai, and or else I used to actually utilize my time, whatever I feel like doing and what makes me happy, like having a cup of tea and then reading a book. Anyways, that used to be my time. Then from 6 p.m. onwards I used to study up to 9 p.m. क्योंकि हम लोग का 9 p.m. में डिनर हो जाता है, उससे ज़्यादा नहीं. तो फिर फैमिली के साथ डिनर हो जाता है 9 बजे, और फिर 10 बजे से पढ़ने बैठती थी. एक, कभी कभी 1:30, 2, कभी कभी 3 भी हो जाता था, विच इज़ नॉट वेरी गुड थिंग. But I'm a very late night person. I'm not a morning person, which I'm not. I was not a morning person, but now I have become a morning person. So I used to study up to 1:30 to somewhere around 3:30 also. कभी कभी very rare 3:30 जाता था, इतना नहीं, 2 बजे तक हो जाता था मेरा. तो फिर 2 बजे तक फिर पढ़ के सोना वोना हो जाएगा. फिर सुबह अगेन द सेम टाइम टेबल रिपीटेटिवली. सो आई एक्चुअली tried my best to actually convert the whole thing into a very optimistic approach, कि उसको मतलब थोड़ा सा modify करेंगे so that it will be healthy for my health. So I thought that I will start studying from 6:30 and I used to wake up at 5:30. फिर morning walk में जाती थी मैं हर रोज़ मम्मी के साथ. तो morning walk में जब जाती थी तो 5:30 को we used to wake up. अभी भी होता है 5:30 a.m. and then I go to walk and come back at around 6:30 6:45. एक घंटे का walk, because I'm living in village and I love to be in nature, connected with nature. And in so many of my vlogs and videos, everyone has actually appreciated so much about the nature in this village, and it is really amazing to spend some time early morning without talking to anyone, just being with nature. That feels really good. Then I come back at around 6:30 AM. तो वहाँ मेरा ये गलती होता है कि 6:30 AM से लेकर 9 बजे के अंदर मैं फिर सो जाती हूँ. क्योंकि देखो, रात को 1 बजे तक पढ़ना, सुबह 5:30 बजे उठना, ये तो होगा ही नहीं कि मतलब मुझे नींद नहीं आएगी. सो आई यूज्ड टू स्लीप, क्योंकि मैं दोपहर को नहीं सोती थी. तो फिर मैं 9 बजे तक सो जाती थी, फिर 9 बजे उठ के पढ़ाई वढ़ाई वगैरह होता था, विच इज़ नॉट ए वेरी हेल्दी. आई थॉट कि आई शुड नॉट कंटिन्यू दिस. सो आई ट्राई टू एक्चुअली मॉडिफाई समथिंग. देन आई नोटिस कि 11:30 बजे मैं सो जाती थी. फिर मैं अपने आप को थोड़ा सा चेंज करने के लिए कोशिश किया कि 11:30 बजे सो जाएंगे और उसके बाद सुबह उठेंगे. तो मैं 2-3 दिन 11:30 बजे जल्दी पढ़ाई वढ़ाई करके सो जाती थी. मुझे नींद आ जाता है तो मैं सो जाती थी. मुझे एनी टाइम भी नींद आ जाता है, कभी भी कहीं भी नींद आ जाता है. आई नोटिस दैट मैं 11:30 बजे सो रही हूँ, लेकिन आई एम वेकिंग अप एट सेम 8 AM 8:30 AM और मे बी 9 AM. सो दैट डिडंट वर्क आउट. सो क्या होता है कि इधर से भी टाइम वेस्ट हो जाएगा, उधर से भी टाइम वेस्ट हो जाएगा. इससे बेहतर देन आई थॉट दैट आई एम नॉट गोइंग टू, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव अप द आइडिया. अभी मुझे चेंजेस नहीं लाना है, बिकॉज आई वॉज एट द पीक ऑफ प्रिपरेशन ऑफ UGC NET. तो एग्ज़ाम के पहले मुझे ये सब चेंजेस नहीं लाना है, because it was harming my time, and it was actually I was wasting a lot of time there. So then I decided I'm not going to do this. मेरा वही चलता रहा कि रात को 1-2 बजे तक पढ़ाई होगा, सुबह 9 बजे उठना होगा, फिर जैसा चल रहा है टाइम टेबल वैसे ही चलेगा. बट बिफोर एग्ज़ाम, बिफोर 2 months ऑफ एग्ज़ाम, मैं अपने आप को कम्प्लीटली स्विच कर दी कि सुबह मैं उठती थी 5:30 बजे, वॉक से आके फिर थोड़ा सा रेस्ट लेती थी. सोती नहीं थी, लेकिन रेस्ट लेती थी, एक किताब या कुछ पढ़ती थी, सो दैट आई विल फील मोर अवेकन. देन
गो फ्रेशन अप एंड जो भी करना है, तो 7 साढ़े 7 बजे से 9 बजे तक 1-1.5 घंटा पढ़ लेती थी। 9 बजे अगेन आई यूज्ड टू हैव माय ब्रेकफास्ट। 9 बजे के बाद फिर से 10:30 बजे पढ़ने बैठती थी 1 बजे तक 1 PM, एंड देन अगेन 3 PM 2:30 PM to 5 PM, and then 6 PM to 9 PM, and then 10:30 PM to 12:30, okay, 12:30 AM. So this used to be my timetable. Now talking about which was more productive, obviously the morning routine was more productive, because if you wake up early then you will feel that you are having a lot more time in your hands. So जो कि नहीं फील होता है जब तुम 9 बजे ही उठोगे, तो आधा दिन ऐसा लगता है कि ऐसे में ही चला गया, मतलब सोते सोते में ही चला गया आधा दिन, विच इज़ नॉट लाइक दैट। मे बी अगर रात को तुम 1-2 बजे तक पढ़ रहे हो तो सेम टाइम यूटिलाइज कर रहे हो, बट स्टिल आई फील कि अगर सुबह जल्दी उठोगे देन आई फील दैट आई हैव अ लॉट मोर टाइम इन माई हैंड, आई एम यूटिलाइजिंग इट मोर प्रोडक्टिवली। तो मुझे मेंटली भी बहुत अच्छा फील होता था तब कि मैं अच्छा जल्दी उठ रही हूँ, तो आई हैव अ लॉट मोर ऑफ टाइम, 2-4 घंटा मेरे हाथ में है उसको अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द टाइम टेबल को किस तरह से मैं सेक्शन में डिवाइड करती थी कि कब क्या करना है। सो फर्स्ट मॉर्निंग उठते साथ ही मेरा सबसे पहला था PYQ सॉल्व करना है। PYQ सॉल्व करते टाइम व्हाट आई डू इज़ आई डोंट लुक एट द आंसर की, आई जस्ट यूज टू सॉल्व विद माई ओन, जितना भी आता है मुझे उससे मैं सॉल्व करती थी, एंड देन आंसर की चेक करती थी, कितना गलत हुआ कितना सही हुआ पता करती थी, एंड देन आई यूज टू एनालाइज। और एनालाइज कैसे करना है मैं पहले 2 वीडियो में बता चुकी हूँ। Looking into the answer, looking into the question, and then writing about the answer, more detailed information about the answer, and then बाकी options के बारे में भी लिखना है। This used to be my process, and then what I used to do is ये जो आंसर की वाला सिलसिला है, फिर मैं मॉक टेस्ट देती थी। सुबह सुबह मेरा पेपर 1 होता था। पेपर 1 में मतलब ये जो पहले 7 से 9 वाला टाइम है, 7 AM to 9 AM, उसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी। देन 10:30 AM से 1 PM तक का मेरा एनालिसिस पार्ट था, पेपर 1 का एनालिसिस पार्ट होता है। उसके बाद क्या होता है, मेरा दोपहर का टाइम मोस्टली 3 PM to 5 PM पेपर 1 के थियरीज़ में जाता है, बिकॉज देर वेर अ लॉट ऑफ थियरीज़ जहाँ पे मुझे ध्यान देना था, क्योंकि आई डिडंट मोर फोकस ऑन द प्रीवियस प्रिपरेशन, मोर ऑन पेपर 1, सो आई हैड टू रीड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मैं तब पैराग्राफ सॉल्विंग, मतलब वो जो पैसेज वाला सॉल्विंग क्वेश्चंस वो करती थी। फिर मॉक टेस्ट वगैरह जब लाइव स्ट्रीम आता है तो 12 बजे बाईजूस का आता था, 1 बजे लेट्स क्रैक UGC नेट का आता था, ऐसे उनका टाइमिंग्स था। तो तब मैं बैठ के सॉल्व करती थी, तब उसको भी एनालाइज करती थी, ऐसा कुछ भी ऐसा क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करके नहीं छोड़ती थी, उसको भी एनालाइज करती थी अच्छे से। सो 3 PM to 5 PM इट्स डन। 5 PM सुबह से लेके 5 PM तक वॉज माई टाइम टू फोकस ऑन पेपर 1, एंड देन 6 PM टू रात के 12:30 बजे तक का मेरा पेपर 2 का पूरा स्ट्रेटेजी। पेपर 2 का मेरा सेम स्ट्रेटेजी नहीं था, क्योंकि पेपर 2 में मैं PYQs के थ्रू से जाती थी, लेकिन वो लेटर ऑन। PYQs से पहले मैंने क्रिटिसिज्म, कल्चरल स्टडीज़, थियरीज़, ये सब में ज़्यादा ध्यान दिया था, बिकॉज आई नोटिस्ड फ्रॉम 2019 द क्वेश्चंस वर मोर फ्रॉम द कल्चरल स्टडीज़, क्रिटिसिज्म, एसेज एंड अननोन राइटर्स, ये सब में ज़्यादा था। तो मैं अपना क्रिटिसिज्म पूरा अच्छे से पहले प्रिपेयर की। देन 1 महीना 1.5 महीना मुझे लगा पूरा क्रिटिसिज्म थियरीज प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आने से काफ़ी पहले मैं पढ़ाई कर चुकी थी, और वैसे भी हम लोग का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पोस्टपोन हुआ था। सो आई वॉज इन द कंटिन्यूस मोड ऑफ फोर्सिंग माई सेल्फ टू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड, कि मतलब एक्स्ट्रा टाइम मिल गया तो उसको बर्बाद मत कर मनीषा, उसको बर्बाद मत कर मनीषा। आई यूज टू गेट डिस्ट्रैक्टेड, एंड देन आई यूज टू कम बैक एंड राइट इन द डायरी, आई एम वेस्टिंग माई टाइम, आई शुड नॉट वेस्ट माई टाइम, आई शुड फोकस, एंड मैनिफेस्टिंग एंड सो मेनी थिंग्स वर गोइंग ऑन इन माई माइंड। आई यूज टू फोर्स माई सेल्फ टू बी इन दैट पॉइंट, क्योंकि वो बहुत मुश्किल हो जाता है, because if your exam gets postponed all the time then it is really difficult for you to actually come to the track। ठीक है, तो वो ट्रैक में ही रहने के लिए ऐसा नहीं है कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। आई ऑल्सो मेड अ शॉर्ट्स वीडियो, आई डू नॉट गेट मोटिवेटेड, आई डू नॉट फील मोटिवेटेड एवरी टाइम, आई ऑल्सो फील लाइक चलो आज नहीं पढ़ते हैं क्या होता है, तो ऐसा भी होता था। 1-2 दिन मैं ब्रेक ले लेती थी। देन उससे क्या होता है कि अगर ज़्यादा 1 दिन से ज़्यादा ब्रेक ले लोगे तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, तो उसके बाद आपको पढ़ने का मन नहीं करता है। सो आई यूज़ टू राइट वाइल जर्नलिंग, आई यूज़ टू राइट इन माई डायरी दैट आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दैट, एंड टू डू लिस्ट, मेकिंग अ टू डू लिस्ट वॉज अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर मी in order to focus more in what I'm studying and what is already done and what is not done, and keeping track of time was my most important thing। मैं हर महीने का इधर अभी भी चिपका हुआ है इधर वॉल में बहुत सारे ऐसे, आई विल शो यू समवेयर हियर, आई विल शो यू द पिक्चर्स।
इधर चिपका हुआ है, कब क्या पढ़ना है, कौन से डे में क्या पढ़ना है, और कितना टाइम है एग्ज़ाम को, और कितने महीने हैं, डेट्स वगैरह, ये सब लिखती थी मैं। एंड उधर भी है कुछ, इधर भी है, वो पोस्टपोन होने से पहले उधर चिपका था, पोस्टपोन होने के बाद आई शिफ्टेड टू दिस बेड, तो यहाँ पे चिपका है, इधर चिपका है। सो या, तो कीप, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कीप योर अटेंशन टुवर्ड्स टाइम, कितना टाइम है तुम्हारे पास और उसको किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हो, क्योंकि हम हर चीज़ अपने हिसाब से नहीं कर सकते। अगर मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम, वैसे मुझे लगता है कि इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने के लिए अगर इंसान को पूरी ज़िंदगी भी मिल जाए तो भी वो नहीं पढ़ के ख़त्म कर सकता। सो कीप रिकॉर्ड ऑफ़ योर टाइम कि कितना टाइम में कितना कंप्लीट करना है, और उस टारगेट में जैसे भी हो कंप्लीट करना है। डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेट करते ही एक बार अगर कर दिए बार बार करना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता था, आई ऑल्सो यूज टू प्रोक्रेस्टिनेट कि चलो ये गोल यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ था, कल कर लेंगे, तो फिर कल का पेंडिंग रह जाता है, परसों कर लेंगे, ऐसा करके 2-3 दिन का वैसे पेंडिंग ही रह जाता था। सो आई मेड माई सेल्फ टू डू लिस्ट, जहाँ पे आई यूज़ टू स्पेसिफिकली राइट कि पेपर 1 का ये PYQs करना है इतने टाइम के अंदर, ये 2 घंटे के अंदर, PYQs को एनालाइज करना है ये 3 घंटे के अंदर, फिर नेक्स्ट 6 घंटे के लिए मुझे पेपर 2 का ये पर्टिकुलर टॉपिक्स कंप्लीट करना है, तो मुझे फेमिनिज्म और गाइनोक्रिटिसिज्म आज के लिए ये 3-4 घंटे के 6 घंटे के अंदर नोट्स पूरा कंप्लीटली बना लेना है, पढ़ पढ़ के समझ के। ठीक है, दैट यूज टू बी माई स्ट्रेटेजी। जितना अपने आप को टाइम बाउंड रखोगे, मतलब एक दिन में कितना कंप्लीट करना है, उस एक दिन में फिर अलग अलग सेक्शंस कि सुबह के टाइम में कितना कंप्लीट करना है, दोपहर के टाइम में क्या कंप्लीट करना है, शाम के टाइम में क्या, और रात को सोने से पहले क्या। यू हैव टू मेक इट, अपने आप को एकदम स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज़ के अंदर रखना पड़ता है। कभी कभार लाइक यू कैन एक्चुअली समटाइम्स मे बी इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल, तो उसको थोड़ा सा आप डिले में जाने दे सकते हो, चलो कल या परसों कभी संडे में देख के कंप्लीट कर दे। संडे यूज टू बी अ वेरी चिल डे फॉर मी, क्योंकि संडे में मुझसे नहीं होता, हर रोज़ नहीं होता है हर रोज़ पढ़ाई नहीं होता है, तो मैं संडे को थोड़ा सा रिलैक्स करती थी। ऐसा रिलैक्स मतलब पढ़ाई वढ़ाई नहीं करना है, नहीं, थोड़ा सा कम पढ़ती थी, 2 घंटा कम पढ़ती थी, दोपहर को सो जाती थी। तो संडे यूज टू बी अ वेरी रिलैक्सिंग एंड चिल डे फॉर मी। बट पढ़ाई को मैं ऐसे, मतलब यू हैव टू मेक अ हैबिट ऑफ इट। जो भी मैं टाइम टेबल शेयर कर रही हूँ, आई मेड दैट हैबिट कि इससे अगर मैं थोड़ा सा अलग इधर उधर हो गई, देन माई माइंड यूज टू रेस्ट्रिक्ट मी कि नहीं, दिस वॉज योर टाइम टेबल एंड यू हैव टू गो विथ दिस ओनली, ये रूटीन फॉलो करना ही है। यू हैव टू हैबिचुएट योर सेल्फ इन टू दैट टाइम टेबल सो मच सो दैट इफ़ यू विल गेट डिस्ट्रैक्टेड, देन योर माइंड विल ऑटोमेटिकली टेल यू टू गेट बैक इन टू द ट्रैक। उस तरीके का ट्रेनिंग आपको देना है अपने माइंड को, और अपने रूटीन को उस तरीके से, उतने सख्ती से फॉलो करना है। सो या, this was all. I also have to answer so many questions by you. There are there is one person who was asking me MH Abraham से literary terms कैसे किया. It is like a dictionary and it is a huge thing. See, you do not have to read everything, but if you want to, it's a great thing. But when I did my graduation, our teacher told us कि MH Abraham से कौन कौन सा तुमको पढ़ना है. He gave us a list कि यहाँ से ये पढ़ना है, वहाँ से feminist criticism, Marxism के बारे में पढ़ना है, periods of English literature के बारे में पढ़ना है, absurd, theatre of absurd के बारे में पढ़ना है, सो मैनी थिंग्स ही गेव अस अ लिस्ट। तो वहाँ से मैं टिक कर करके, अंडरलाइन करके अपना नोट्स बना के पढ़ा करती थी। हर चीज़ को मैं नहीं पढ़ती थी, लिटरेरी टर्म्स को कम्प्लीटली नहीं होता है, जितना ज़रूरी होता है उतना पढ़ना होता है, लेकिन मोस्टली लिटरेरी टर्म्स में इतने अच्छे से गिवन होता है। एग्जाम्पल, इट इज़ लाइक अ डिक्शनरी फॉर इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट्स। वन मोर पर्सन वॉज आस्किंग मी व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू नेक्स्ट। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। घर में मुझे पढ़ाई करने ही नहीं दे रहे हैं। एवरीवन इज सेइंग दैट प्लीज़ टेक रेस्ट, क्योंकि आई वॉज हैविंग अ वेरी बैड हेडेक एंड बैक पेन कंटिन्यूसली पढ़ के, ऐसे हो गया था मेरा थोड़ा सा। तो अभी मुझे जब रिजल्ट हो गया फाइनली, तो आई एम टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ रेस्ट। मुझे PhD नहीं करना है, नहीं करना है, बट नॉट नाउ। आई एम नॉट रेडी फॉर 4 or 6 years of again that torment. इट्स नॉट लाइक टॉर्चर, बट इट्स लाइक, ये कोई ऐसा 6 महीने का या 1-2 साल का कोर्स नहीं है जो PhD ऐसे ही पकड़ ली। PhD इज़ अ रियल टास्क गाइज, सो यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ कमिटमेंट टू PhD. अभी आई एम नॉट रेडी फॉर दैट. मे बी इन सर्विस PhD आई विल थिंक अबाउट इट लेटर. एंड आई हैव टेकन अ ब्रेक, a very long break after so many times. I have given my, trust me when I say this, ये तो मुझे अभी मैं सक्सेस मुझे मिला है.
I have qualified this recently, but I have been giving 2 to 3 एग्ज़ाम्स बिफोर दैट ऑल्सो, नॉट यूजीसी नेट बट अदर एग्ज़ाम्स भी होते हैं जो मैं क्वालिफाई नहीं कर रही थी, जैसे कि गेट और एसएसबी। उसके लिए भी मैंने 2 साल से या 3 साल से मैं बहुत पढ़ाई कर रही हूँ। आई हैव नॉट टेकन ब्रेक्स। मैं बाहर घूमने नहीं जाती थी, कुछ भी नहीं करती थी। नाउ इज़ द टाइम व्हेन आई एम एक्चुअली रियली रिलैक्स्ड। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, जिस दिन रिजल्ट निकला उसके बाद से मुझे बहुत नींद आ रहा है। Finally, when I get to qualify UGC net, then I'm a bit relaxed maybe. So that made me realize कि I really need a break. So I have taken a break. तो ये मेरा लास्ट वीडियो था UGC net 2022 के लिए। उसके बाद और नहीं होगा। इसके बाद से मैं अपना व्लॉग ही अपलोड करूँगी, कौन कौन सा बुक पढ़ रही हूँ, कौन सा नहीं पढ़ रही हूँ। आई हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट द बुक्स दैट आई एम रीडिंग राइट नाउ, सो आई विल बी मेकिंग व्लॉग। सो एनीवेज, लेट्स सी व्हाट आई एम गोना डू। आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट द गेट। देखती हूँ होगा या नहीं होगा, प्रिपेयर करूँगी या नहीं करूँगी। यू विल गेट टू नो मेरे बारे में, जो भी मैं पढ़ाई करती हूँ, जो नहीं करती हूँ, वो सब तो मैं बता ही देती हूँ। तो आई विल टेल यू। बस अभी पढ़ाई नहीं हो रहा है, अभी बुक्स वगैरह पढ़ रही हूँ, वैसे ही नॉर्मल चल रहा है। एंड वेटिंग फॉर वैकेंसीज। एंड नाउ आई विल गो टू समवेयर एंड वहाँ से घूम फिर के थोड़ा सा आने के बाद थोड़ा सा सीरियसली पढ़ाई चालू होगा। क्योंकि इफ़ यू, इंग्लिश लिटरेचर इज़ सच अ सब्जेक्ट दैट इफ़ यू डोंट continuously revise yourself and don't continuously revise all the facts that you have read, then you will kind of forget everything, you know, भूल जाओगे। बार बार रिविज़न करते रहना पड़ता है। क्रिटिसिज्म तो याद रह जाता है, लेकिन हिस्ट्री याद नहीं रहता है, बार बार पढ़ना पड़ता है। सो या, thank you so much for watching my video, and ask me questions in the comment section, decent questions, इधर उधर का नहीं, and please add some positive comments as well, which makes me really happy, and you always do that। मैं बोलना नहीं पड़ता, लेकिन बहुत मतलब पहली बार मैं जब बोली थी कि please add some positive comments and I'm not feeling well mentally and it will make me happy, and so many positive comments were there in my video। तब से लेके आज तक जितने भी वीडियोज़ मैंने बनाए हैं उसमें आपका पॉजिटिव कॉमेंट्स होता है, which I'm really very appreciative about, and thank you so much for watching my video। Please like, share and subscribe to my YouTube channel, and keep supporting and keep giving love. Thank you.